নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। Globe News Jharkhand sponsored by CTA Aviation and Hospitality Management. বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি টাটা মেন হাসপাতালে মৃত্যু হয়, এটি নিশ্চিত করে জামশেদপুরের জেলা প্রশাসক রবিশঙ্কর শুক্লা। তিনি বলেছেন যে আক্রান্ত রোগীর দেহের অনেক অংশ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। 30শে জুন ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য টাটা মেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে জেলা প্রশাসন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে। জেলা প্রশাসক নাগরিকদের কাছে কোভিড-19-এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য আবেদন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে পর্যাপ্ত সতর্কতার সাথে রাস্তায় বেরোনোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। अन्य मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने की सूचना थी। 30 जून को ये एडमिट हुए थे टीएमएच में और उसके बाद आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास इनके निधन की सूचना प्राप्त हुई। सभी लोग पर्याप्त सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। बाहर यत्र तत्र थूकने का कार्य ना करें और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें। অখিল ভারতীয় বীমা কর্মচারী সংঘের আহ্বানে আজ সারা দেশে বীমা খাতে বিনিয়োগ সহ সকল সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এর আওতায় বীমা কর্মচারী ইউনিয়ন হাজারীবাগ বিভাগের ধানবাদ ইউনিট দ্বারা সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে রণধীর বর্মা চকে প্রতিবাদ প্রদর্শন করে। ধানবাদের সমস্ত জীবন বীমা কর্পোরেশন শাখা থেকে আসা সংগঠনের কয়েকশো সদস্য সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন। কয়লা খাতে কমার্শিয়াল মাইনিং এর বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। पूरे भारत में मोदी जी के राज में सब कुछ बिकते जा रहा है। सारा बैंक का शेयर बेच दिया, कमर्शियल माइनिंग में कोयला को बेच दिया। ये सरकार नया कुछ कर नहीं रही है, जो पहले से बना हुआ है सभी को बेच रही है। उसी के खिलाफ जैसे LIC में शेयर बेचने की बात हो रही है। जो LIC भारत सरकार को हमेशा रक्षा करती है, भारत सरकार की हमेशा ज़रूरत पड़ने पर पैसा देती है, उसी को ये बेचने जा रहे हैं। तो इससे तो ये सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है हमें। और कोरोना के चलते जो देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अभी करीब 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। সরাইকেলা জেলায় ক্রমবর্ধমান সংক্রমিত রোগীর সংখ্যার সম্বন্ধে জেলা প্রশাসন আবারও পদক্ষেপ নিচ্ছে, যেখানে জেলা প্রশাসন আবারও গামারিয়া ও আদিত্যপুরে কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। গামারিয়া ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে গামারিয়া ও আদিত্যপুর বাজারের জুতো ও পোশাকের দোকান বন্ধের আদেশ জারি করা হয়েছে। पूर्व से ही आदेश दिया गया था कि जो कपड़ा और जूते की दुकान केवल जिला मुख्यालय में ही अवस्थित दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन विगत कुछ दिनों से कुछ जिला मुख्यालय के बाहर के भी कपड़ा और जूते के दुकान खुल रहे थे, जिसके चलते संक्रमण फैलने की घटना सामने आ सकती है। तो संक्रमण के फैलाव के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से फिर हम लोगों ने उन दुकानदारों से अनुरोध किया कि भाई सरकार के आदेश का पालन करें और आप कपड़ा और जूते चप्पल की जो दुकानें खुल रही थी, जिसके खुलने का आदेश नहीं था, उन्हें बंद करने का निर्देश फिर से दिया गया है। সরাইকেলা জেলার খারসোয়া থানা অন্তর্গত কুম্বারশাহীতে গুপ্ত সূচনা পাওয়ার পরে রেশন দোকানে পুলিশ অভিযান চালায় এবং পুলিশ গাঁজা ব্যবসায়ী বাদল কুমার পানিগ্রাহীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। দুটি বড় পলিথিন ব্যাগে প্রায় 1.5 কিলো গাঁজা এবং ছোট পলিথিন ব্যাগে 67টি পুড়িয়া আনুমানিক 50 গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সাথে পুলিশ গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারও করেছে। को इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, हर एक इन्फॉर्मेशन की कार्रवाई करते हुए आज सुबह खरसावां थाना से इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक दुकानदार है जो कि राशन का दुकान चलाता है, मगर उसी के एवज में वो गांजा और अन्य मादक पदार्थों की भी का भी व्यापार कर रहा है। तो उस क्रम में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान हम लोगों को लगभग 1.5 किलो गांजा और छोटे छोटे पैकेट में कुल 67 पैकेट मिला है अलग से, जिसमें कि छोटा छोटा पुड़िया टाइप का गांजा या गांजा ऐसा पदार्थ रखा हुआ है। জামশেদপুরের সুবর্ণরেখা নদীতে আবারও একজন নিরীহ কিশোর ডুবে মারা গেছে, যেখানে উলিদি থানা এলাকার সাঁকোশাহী শ্যামনগরে ভাড়া বাসায় থাকা রাজমিস্ত্রির 12 বছরের ছেলে নদীতে ডুবে মারা যায়। বাড়িতে কেউ ছিল না এবং যুবকটি তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। এই সময় সে গভীর জলের স্রোতে ভেসে যায়। অনেক চেষ্টা করার পরে ওই যুবকটিকে স্থানীয়রা জল থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি MGM হাসপাতালে পৌঁছায়, যেখানে চিকিৎসকরা কিশোরটিকে মৃত ঘোষণা করেন। এই সময় বিজেপি নেতা
নেতা বিকাশ সিং এমজিএম হাসপাতালে পৌঁছে ভুক্তভোগীর পরিবারকে আশ্বস্ত করেছেন। একই সময়ে বিজেপি নেতা সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে এই এলাকায় জলের সংকট হওয়ায় লোকেরা নদীর আশ্রয় নেয় এবং অকালে এই ধরনের দুর্ঘটনার শিকারও হয়। श्यामनगर में रहने वाले टुगलू नायक का 12 वर्षीय इकलौता बेटा श्यामनगर छठ घाट में नहाने गया था। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि मानगो में पानी की घोर किल्लत है, मानगो में जलापूर्ति नहीं हो रही है और आज उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि नदी में नहाने के दौरान वह गिर गया और उसका देहांत हो गया। निश्चित रूप से यह घटना दिल को मर्माहत करने वाली घटना है और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। श्यामनगर संघ से ऑलरेडी हम 8 बजे निकल गए थे, ड्यूटी किए थे, हम समझा कि ये कहीं नहीं जाना, वो नदी चल गया था नहाने के लिए। जी हाँ, नल उल है, उसको हमेशा मना करते मत जाना, फिर भी चलिए। ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ প্রবন্ধনের মন্ত্রী বান্না গুপ্তা আজ তার বিধানসভা কেন্দ্র জামশেদপুর পশ্চিমে সফর করেছেন। এই সময় মন্ত্রী সোনারীর বস্তিতে পৌঁছান, যেখানে মন্ত্রী জনগণের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে জানেন। একই সাথে মন্ত্রী বাসিন্দাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যার বিবরণ দিতে বলেছেন। निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक सूची बनाकर दे दीजिए कि आपके इलाके में क्या क्या काम की जरूरत है। মানসিকভাবে বিক্ষিপ্ত এক ব্যক্তি তার মা ও স্ত্রীর উপরে প্রাণঘাতী হামলা করে। ওই ব্যক্তির স্ত্রী অচেতন এবং মা গুরুতর আহত হয়েছেন। পরিবার এবং স্থানীয় লোকজন প্রশাসনকে এই ঘটনার সূচনা দিয়েছেন। কোয়ালি থানা এলাকার হেসরায় ইন্দ্রজিৎ নামে এক ব্যক্তির আকস্মিক মানসিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি যাকেই সামনে পান তার উপরে মারাত্মক আক্রমণ করেন। এর শিকার তার নিজের মা হয়। যখন তার মা কোথাও যাচ্ছিলেন তখনই হঠাৎই বড় পাথর দিয়ে তার মায়ের উপরে হামলা করেন, যাতে তার হাতের হাড় 2 জায়গায় ভেঙে যায়, যার চিকিৎসা সরাইকেলায় করা হচ্ছে। আজ সে নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যদের অনেক চেষ্টা করার পরে তার স্ত্রীকে বাঁচানো সম্ভব হয়। এর ফলে গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। वो एक्टिविटी कर रहा है कि गांव घर में पहले तो घर में स्टार्ट हुआ, 15 दिन से हुआ, फिर हमको बुलाने गया उनका भाई लोग कि मारपीट कर रहा है। फिर इनका वाइफ को आज सुबह सुबह गला दबा के बेहोश कर दिया। फिर उसका माँ को भी काल हाथ तोड़ दिया। मानसिक स्थिति उसका खराब ही है। मेरे सास को हाथ पाँव तो पूरा तोड़ दिया है और उसका बीवी को पूरा गला में दबा के रखा है, बेहोश कर दिया। बेहोश कर दिया। कितना दिन से? 15 दिन से मारपीट कर रहा, गांव वाले के ऊपर मारपीट कर रहा, घर से निकलने नहीं दे रहा है। एक गला में उसका वाइफ को भी चिप के गिरा दिया है। मेरा माँ को हाथ मार के पत्थर से मार के तोड़ दिया। আজ জামশেদপুর স্থিত শ্রী ভরত সিং এর কার্যালয়ে ডান্স কোরিওগ্রাফার স্বর্গীয় সরোজ খানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। मुंबई के प्रख्यात कोरियोग्राफर और जिन्होंने करीब करीब सैकड़ों हीरोइन को आज अगर इस फिल्म इंडस्ट्रीज में वो हैं तो ड्यू टू सरोज खान। डांस की देवी आप अगर इनको कहिए तो कम होगा। एक अच्छी मिलनसार कोरियोग्राफर, एक अच्छी माँ, और हम लोगों को भी एज ए गार्जियन वो ट्रीट करते थे। आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम सभी लोग उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 2010 में हमारे आगरा पर कमल किशोर अग्रवाल जी, परशुराम मिश्रा जी की आगरा पर उन्होंने यहाँ पर डांस एकेडमी, सरोज खान डांस एकेडमी की स्थापना की थी और वो हमेशा 3 महीने 4 महीने पे जमशेदपुर आती थी और यहाँ के जो भी बच्चे, कुल्हान के तक के तो बच्चे हमेशा आते थे, रांची पटना तक के बच्चे यहाँ पर डांस सीखने के लिए आते थे। अब बहुत ही बारीकी से वे लोगों को डांस सिखाते थे और आज उनके सिखाए हुए बच्चे जो हमारे एकेडमी में लोग थे। জলবায়ু বিভাগের বিশেষ সতর্কতার পরে রাজ্যের দুর্যোগ প্রবন্ধন মন্ত্রী বান্না গুপ্তা রাজ্যবাসীর কাছে 4 ও 5 জুলাই বিশেষভাবে সাবধানে থাকার জন্য আবেদন করেছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় বজ্রপাত সম্ভাবিত এলাকাগুলিতে লোকেদের বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আবেদন করেছেন তিনি। मैं आपके माध्यम से चूँकि 4 और 5 तारीख को वज्रपात होने की संभावनाएं हैं, हमारा मौसम विभाग जो है 48 घंटे पहले हमको बता देता है कि कितने सराउंडिंग एरिया में वज्रपात की संभावनाएं हैं। फिर 24 घंटे पहले और कम करके बताता है। अंतिम 3 घंटे होते हैं उसमें बहुत एक्यूरेट बताता है।
तो हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे एयरटेल के टावर हैं, BSNL के हैं, जियो के हैं, उनके साथ हम लोग टाई अप करने पर विचार कर रहे हैं। फिर हम लोग गांव में, जिस गांव में ये सब होना है वहाँ डुगडुगी बजा के भी मुखिया और पंचायत के माध्यम से भी लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो 4-5 को जो घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, मैं आम लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गांव के ग्रामीण तालाबों में जैसे ही ऐसी संभावनाएं दिखें तो तालाबों में ना जाएं, गीले ज़मीन में ना रहें। जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बरसात भी होने लगती है, जब वज्रपात होने की संभावना होती है तो बरसात भी होता है। बरसात से बचने के लिए लोग बड़े बड़े पेड़ के नीचे जाते हैं, वहाँ ना जाएं। छाता और धातु वाली चीज़ों को ना पकड़ें और प्रयास करें कि इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें।